ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, शुरू से वेस्ट की तरफ इतना इन्फ्लुएंस है। आयुर्वेदा जो कि शरीर के लेवल पे आप अनुभव करते हो, लोगों को लगता है बीमारी ठीक करने के लिए है, लोग बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी का कोई रोल है ही नहीं। ये मेडिसिन इस ग्रह के लिए काम करती है। आयुर्वेद है ना, ज्योतिष भी वेद का अंग है। योगा की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, ये तीनों तीन ब्रांचेज हैं एक ही फिलॉसफी की। पूजा से वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, लेकिन पूजा से उसको राइट इलाज मिलेगा। योगा को अगर हम बात करें तो हम आसना तक ही रह चुके हैं। पिछले जन्म में लोगों के कपड़े चुराने से इस जन्म में खुजली होती है। आप आयुर्वेद को, योग को और एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। ये नहीं कि ये लोग जी यहाँ बैठे तब मैं ये कह रहा हूँ। Namaste. नमस्कार जी। Very warm welcome on the podcast of Astrologue Ajit ji. You are Dr. Ajit ji, but I love calling you Ajit ji. Welcome, and it's a pleasure to have you on the podcast of Astrologue, coming all the way on a Sunday afternoon. As we all know, Ajit ji is a very, very prominent, I would say, a leader and a celebrity in Auckland who has brought the holistic Ayurveda to our country. I'd like to read about you, Ajit ji. You are the founder, director of Ayurveda Wellness. And you are known for combining Ayurvedic principles with the Western medicine. That is so beautiful. You are the president of the International Council of Ayurvedic Medicine. And you have just launched the skincare product Ayurveda, which are based on the Ayurvedic expertise and the clinical research by you. So what a pleasure to have you. And being your client as well, I've come to you as well for massages. And it's such a beautiful way to know you a little bit more today. Thank you so much. Thank you, very kind. And we all know our Astrologue founder, the director, the CEO, the guru, Alok ji, who's a renowned astrologer. Thank you very much. Entrepreneur and a motivational speaker. And I'm very proud to say I am Astrologue student. Just passed my first year, going with the second year. He's the founder, CEO of Astrologue and the Recharge Trendsetter because he's an MBA, he's an MS Psychology, MA Economics. So I would say the head and the heart, they both are in the right place. You have a vision to revolutionize astrology, promote it as a science rather than a myth, which is just amazing. You are been traveling all across the world and make people aware of their soulful journey and their purpose in life. Taught more than 50,000 students and have done more than 36,000 consultation and 50 just added in New Zealand. Yes. So thank you to both the legends sitting in front of me. अजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, as being his student, हम ज्योतिष के साथ पढ़ा और ये हमेशा हमें आयुर्वेदा में लेकर जाते थे, तो समझता नहीं था why he's touching base again Ayurveda, what's your diet, what's your Ayurvedic like the principles. So how would you define Ayurveda if I have to start with you? अगर आयुर्वेद को डिफाइन करना है तो सिंपल है जी कि आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जी या सिंपल साइंस कह लो जो आदमी को ये समझाती है कि भाई अगर आपने जीवन ले लिया है इसको जीना कैसे, इन सिंपल। जीने की कला। प्रॉब्लम ये है हमारी कि हम आयुर्वेद को एक ऐसी पत्ती मानते हैं कि जब सब कुछ ट्राई कर लिया तो इस जड़ी बूटी को भी ट्राई कर लो। सही बात। पर आयुर्वेद में जड़ी बूटी का कोई रोल है ही नहीं। जी यही बात हम समझाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ आ रही है सब लोगों को। होता यही है, जैसे आपको तो सबको पता है कि अगर हम योगा की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, ये तीनों तीन ब्रांचेज हैं एक ही फिलॉसफी की। ठीक है, इनका किसी का भी गुजारा एक दूसरे के बिना नहीं। ठीक है, पर हमारी समस्या मैं तो ये कहूँगा कि सालों से ही है, या 200 साल 300 साल हो गए, हमारे खून में भी वही चीज़ है कि जब भी हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उस पर हम वेस्ट की मोहर जब लगी हो तब हम उसकी तरफ भागते हैं कि ये हमारा हो गया। ठीक है ना, योगा की बात देख लीजिए, अब आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद की तरफ लोग चल रहे, पर इसके बिना हमारी जो दुनिया है, मैं तो ये कहता हूँ उसका गुजारा नहीं है, चाहे मेरे जीवन काल में ये पूरा हो या ना हो, पर ये रियलिटी है। बहुत खूब और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि यस दैट इज़ व्हाट इट इज़। जब तक ठप्पा नहीं लगता नहीं होता है वो काम। बट आलोक जी, अपन ज्योतिष से क्यों जोड़ते हैं इसको? आप हमेशा, मुझे मेरी क्लासेस में भी याद है, आज की टॉक में भी आपने बोला आपको ये एलिमेंट अपना ठीक करना है तो अश्वगंधा लीजिए, तो ये हम क्यों जोड़ते हैं? वो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि चूँकि पंच महाभूत से मिलकर आप बने, पूरी दुनिया भी बनी है,
तो हर चीज़ इस दुनिया के अंदर किसी न किसी ग्रह को क्लासिफाइड है। तो आपके पास कई तरीके की चीज़ें, अगर आपको ग्रह का उपचार करना है तो अब एक हुआ आयुर्वेदा, जो कि शरीर के लेवल पे आप अनुभव करते हो। लोगों को लगता है बीमारी ठीक करने के लिए है, लोग बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, राइट। वो सही स्वास्थ्य के लिए है, सही बात, राइट। और दूसरा, आपको सही स्वास्थ्य कैसे आएगा? क्योंकि रोग आता है आपको आपके कार्मिक इम्बैलेंसेस से, है ना। क्योंकि एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, उसका मान लो डे 1 कोई अगर कोई रोग है उसको, तो मतलब उसने तो इस जन्म में तो कुछ भी किया नहीं बेचारे ने, अभी तो आया ही है, उसको रोग कैसे आ गया? तो कार्मिक इम्बैलेंस से आता है। तो ग्रह और आयुर्वेदा को जब जोड़ते हैं तो एक ईजी टेक्निक है। आपको मैं अगर बोलूँ 1.25 लाख मंत्र करने हैं, आपको आज के टाइम में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट मैं आपको बोलता हूँ कि ये मेडिसिन है, मुझे पता है कि ये मेडिसिन इस ग्रह के लिए काम करती है। so medicines work on the planet. यस, तो जो बेसिक जो होलिस्टिक अप्रोच है इलाज करने की व्यक्ति का, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो कार्मिक हो, वो है मेडिटेशन, मेडिकेशन और मंत्र। ये 3 एम है, 3 M है। और पहले इसी तरीके से ही होता था, बिल्कुल सही बात है ना? लोग भाग रहे हैं मनी मनी मनी। उसके कारण इस पे आ ये रहे 3 अगर आप करोगे तो चौथा आपको आराम से आ जाएगा। चौथा आराम से आ जाएगा आपको मनी। तो इसलिए जब हम तीनों को, जैसे नाम के पीछे लिखा है जो आयुर्वेद है ना, ज्योतिष भी वेद का अंग है, तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ को प्रमोट करती हैं कि हम अपने ग्रह के, हमारे नक्षत्रों को, ग्रहों को आयुर्वेद से भी ठीक कर सकते हैं, मंत्र से भी ठीक कर सकते हैं, योग से भी कर सकते हैं, ध्यान से भी कर सकते हैं, दान से भी कर सकते हैं। इसीलिए ये पूरा एक सर्किल है, जैसा डॉक्टर साहब कह भी रहे थे। बट अब अगर कोई आयुर्वेदिक, जैसे मुझे, मैं जाती हूँ डॉक्टर अजीत के पास और सर मुझे कुछ मेडिसिन देते हैं, उनको तो पता नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली क्या चल रहा है, वो मेडिसिन चालू कर दी तो दैट विल स्टार्ट वर्किंग ऑटोमेटिकली विद माय पल्स। यस, देखिए बात ये है कि मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फील कर रही हूँ नहीं, इसको। मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती कह लीजिए या जो भी सिनारियो, फिर बात वही आ जाती है क्योंकि हम शुरू से वेस्ट की तरफ इतना इन्फ्लुएंस हैं कि अपनी संस्कृति को, अपनी नॉलेज को हमने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। अब बात वो है कि आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी और योगा, इसका हमेशा से ही संबंध रहा हमारी क्लासेस में, क्योंकि मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ, 1978 में निकला, ठीक है, जब पढ़ के, तो हमें ये सब करना पड़ता था। Yes. हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ती, yes, I will ठीक add है, to this. हमें सभी ग्रह को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वो ठीक है कि आपने स्पेशलिटी नहीं की उस ब्रांच में, वो आपकी बात है। इसी तरह योगा की बात है। अब योगा को अगर हम बात करें तो हम आसना तक ही रह चुके हैं, ठीक है ना। 8 लिम्ब की बात तो कोई करता ही नहीं, पतंजलि सूत्रा की कोई बात नहीं करता। अब अगर हम योगा के 8 लिम्स उठा लें तो वही है कि जो आहार विहार है आपका, राइट। तो सारा चीज़ अगर वो नहीं करोगे तो सिर्फ योगासन करके कहाँ तक पहुँचोगे। इसी तरह से जब एस्ट्रोलॉजी की बात हम करते हैं तो हर एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को ये पता है कि हमारे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी मूवमेंट हर वक्त रहती है। और आपका अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट है बना हुआ तो वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अंडरस्टैंड थोड़ा कर पाते हैं कि आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। सो अभी हमने काफ़ी सारे आयुर्वेद डॉक्टर्स को ज्योतिष पढ़ाया। सो बेसिकली, और अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने आयुर्वेदा सिलेबस के अंदर गृह चिकित्सा एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया। ये अभी हुआ है। सो हाउ इट वर्क्स इज, वो आपका नर्व्स पकड़ेंगे, उनको ज्योतिष का ज्ञान पहले के ज़माने में, डॉक्टर साहब पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, कंपलसरी था, ऑप्शनल नहीं था। तो देन ही पिक योर नर्व्स एंड ही अंडरस्टैंड, अच्छा वात बड़ा हुआ है, तो अस्पताल में ज्योतिषाचार्य होते थे और अस्पताल में ब्राह्मण होते थे। तो जो प्रैक्टिशनर है वो दवाई लिखेंगे, साथ में उनको पता है बात बड़ा है तो राहु या शनि का कुछ प्रॉब्लम है, राहु के मंत्र बताएंगे, वो पंडित जी वो मंत्र करेंगे। ये प्रोसेस था बेसिकली। हाँ, तो अकेला कुछ भी नहीं है। बट जैसा आप बोल रहे हैं कि वेस्ट के इम्पैक्ट की वजह से इसको मिथ बता के हटा दिया। अब गवर्नमेंट चूंकि थोड़ी प्रोग्रेसिव है इंडिया के अंदर, तो वो अब उसको ऐड कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द रियल वे टू ट्रीट पीपल। अकेला दवाई से भी नहीं होगा, अकेला मंत्र से भी नहीं होगा। जैसे हमारे पास केसेस आते हैं जब बहुत बीमार है, कोई हमें कुंडली दिखाता है तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई ये बहुत दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, आप ये पूजा करा लो। पूजा से क्या होगा उस समय पर? पूजा से वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, लेकिन पूजा से उसको राइट
इलाज मिलेगा, होगा दवाई से ही, ओके होगा दवाई से देखो, ठीक, मैं इसमें क्योंकि ऐड रोग आया करना है तो चाहूँ। हाँ जी। दवाई से ठीक होगा, लेकिन या तो वो दवाई उस पर काम करने लगेगी, जैसे आप अपन समझते हैं कि दवाई असर करने लगी, या फिर डॉक्टर को ऐसा बुद्धि आएगी कि वो राइट दवाई लिखेगा दवाई। उसको। अच्छा ये प्रोसेस है बेसिकली। इसमें आयुर्वेद में है एक देवव्याप्य चिकित्सा, ठीक है। Correct. तो वो देवव्याप्य चिकित्सा क्या है कि जो आपकी सिचुएशन चल रही और उसमें अगर आपको पता लग गया कि इसका ये टाइम ग्रहों के कारण से, इसकी ये पोजीशन है, इस ग्रह में, इस स्थान में आपकी एस्ट्रोलॉजी में ये बैठा हुआ है, तो ये पीरियड थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है। और उसको ये भी हमारे एस्ट्रोलॉजर बता पाते हैं कि आपको आपके कौन सा जो ऑर्गन है, अगर मूत्र रोग की प्रॉब्लम आ रही या आपको प्राणावाश्रुता की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ये वाला टाइम है आपका। तो जब वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ गई या उन्होंने उस नॉलेज को, तो उनकी जो सारी प्लान है वो बेस्ड ऑन दोज एस्पेक्ट हो जाती है। उसमें हम, जैसे इन्होंने मंत्रा की बात की, मंत्रा का क्या है, कोई बीमारी जो है आज के डेट में भी मैं ये कहता हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें मार पाए। होता क्या है कि जो हमारा भय है, जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं आजकल, चिंता है, उस बीमारी की जो एंग्जाइटी और वरीज और फियर हैं, दे किल अस। और ये जो हम जब अंडरस्टैंड करते हैं कि हम हर वक्त चैंट करें कोई भी मंत्र, चाहे हम मृत्युंजय की बात करते हैं, चाहे हम सिर्फ गायत्री मंत्र की ही बात करते हैं, चाहे हम सिर्फ ओम का ही चैंट करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का रेजोनेट, उसमें एक और एलिमेंट मैं ऐड करूँगा, हमारी बॉडी में हैं 7 चक्रस, ठीक है। उन 7 चक्रस को हम कहते हैं आयुर्वेद में हमारी फाउंडेशन है। जब फाउंडेशन हिलेगी तभी मकान गिरेगा। तो वो चीज़ें जो हैं हमें, जो हमारे मंत्रास हैं, रादर की वो हमें KFC की तरफ लेके जाएं, वो हमारी बॉडी की तरफ रखते हैं कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव के तरफ फिर जब वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने उनको अच्छा खान पान बता दिया, उसको फॉलो कर लेंगे। नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, जैसे विवेक की बात अपना इन्होंने आलोक जी ने की उस दिन भी, कि हमारा विवेक है जो ये डिटरमिन करता है कि आप राइट डिसीजन लोगे कि रॉन्ग डिसीजन लोगे। और विवेक तो फिर उन्हीं चीज़ों से सुधरेगा ना कि जो आपका लाइफस्टाइल है, ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, वो सारा कंपोज। इसलिए ये तीनों एलिमेंट इतनी मतलब क्लोजली नेटवर्क है। और प्रॉब्लम हमारी है कि हम इनको फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें एक्शन लेना है। हम ऑलवेज लुक फॉर क्विक एक्शन एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। सो हाउ इट इज वर्क्स बेसिकली, इफ यू सी आइडियल सिचुएशन में होता ये है कि होता होगा पिछले ज़माने में, अभी तो होने लगे हैं कुछ दिनों में। जैसे आप अभी मेडिकली इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है इन्वेस्टिगेशन कराओ। दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज लाइक हॉरोस्कोप रीडिंग। तो आइडियली एक आदमी को अपना हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजर से रीड कराकर फिर वैद्य के पास आना चाहिए कि भाई मुझे ये दशा, ये अंतर, ये चल रहा है। एंड वैद्य को इतना ज्योतिष आता ही है, वो कंपलसरी है उनको, तो उनको पता है कि हाँ भाई ये वो उस तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन आ गया है कि ही इज गेटिंग इनटू अ बैड टाइम, मे बी 6th लॉर्ड दशा, 8th लॉर्ड दशा, 12th लॉर्ड दशा, और नब्ज बता रही है कि वात बढ़ गया या पित्ता बढ़ गया। तो ही अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि अब मुझे ग्रह के, उनको पता है कि कौन से ग्रह को कौन सी मेडिसिन क्योर करती है, तो वो सीधे जाकर उस निशाने पे लगेगा। सो आइडियली ये जो सिस्टम है ये ईजीएस्ट सिस्टम है, क्योंकि आपको केवल एक दवाई खानी, बट वो दवाई उस प्रोसेस से बनी है जिसमें 100% इन्वेस्टिगेशन है, प्रूवन है कि भाई ये व्यक्ति को ये रोग आएगा इतने समय पर, इसका बिगिनिंग हो गई है या अबाउट टू बिगिन, उसको क्योर तो वैसे किया जाता था। बड़ा एक अलग बात मेरा, जैसे हम पले बड़े हैं, जो आपने तो बोल ही दिया है कि हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस मेडिसिन खाएं, एक हमने कैप्सूल खाया और हमारा दर्द चला गया, यही काम करती है। और आयुर्वेदा तो भाई बड़ा स्लो है, और ज्योतिष तो फिर उसके और आगे हो गया। तो अब दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि आपके पास जो लोग अपना ज्योतिष या पूछने आते हैं चार्ट, वो अपना डाइट प्लान चेंज करना या आप इन दवाइयों पर नहीं जाना चाहते, तो उनको क्या असर होगा? और आपको जो लोग इतना ज़्यादा एलोपैथी में है, या जो मतलब द साइंस इज़ गुड, आई डेफिनेटली एग्री, बट बहुत उनको कैप्सूल्स या क्विक फिक्सेस चाहिए, उनको आयुर्वेदा मतलब इतना अच्छा ज्ञान है, ये मतलब आपके अंदर तक जाके आपको वो हेल्प करेगा, तो उनको कैसे हम लाते हैं या ला सकते हैं? मतलब हमारे लिसनर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि उनको हम बताएं कि कैसे उनका फ़ायदा हो सकता तो मैं काफ़ी सारे लोगों को चार्ट देखकर आयुर्वेदा चार्ट को फॉरवर्ड रेफ़र करता हूँ।
अब उसमें बहुत सिंपल सा तरीका, फॉर एग्जांपल एनी मेलेफिक प्लैनेट इन योर 8th हाउस, उसका 8th हाउस कष्ट का स्थान, उसका सब्जी या उसका जानवर नहीं खाना चाहिए आपको, वो आपको मृत्यु तक लेके जा सकता। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गॉट सन इन द 8th हाउस यू शुड नॉट ईट एग्स, इफ यू हैव गॉट केतु इन द 8th हाउस यू शुड नॉट ईट फिश, इफ यू हैव गुरु इन द 8th हाउस यू शुड नॉट ईट बीफ। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो हम उनको बताते हैं भाई तुम आप, क्योंकि अब हर आदमी को ये नहीं कह सकते कि आप वेजिटेरियन हो जाओ, राइट, बट उसमें भी क्या चॉइस है जो आपको बहुत हार्म कर रहा है, राइट, तो हम बताते हैं भाई आप ये मत खाना। अब इन्हीं को सब्जियों में ले लो आप, या मंगल अष्टम में अगर उसके, तो मैं बोलूँगा टमाटर नहीं खाना, गर्म दूध मत पीना, राइट, सब पित्ता क्रिएटिंग है, राइट। 5th हाउस उसका स्टमक है, 5th और 6th में अगर बहुत मेलेफिक है, मंगल है, केतु, हम उसके मतलब फास्टिंग मत करो भाई, आप मत करो फास्टिंग, आपका बस की बात नहीं, आपका पित्ता बढ़ेगा, आपका सर दुखेगा। तो फास्टिंग भी हर आदमी के लिए नहीं है ना, बिल्कुल सही। कि आप सोचो कि आप भाई इससे भगवान मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो आप सबका अपना अपना मीडियम है। तो इस तरीके से मैं उसको कोरिलेट करके, एंड देन चूंकि मैं आयुर्वेदा नहीं जानता हूँ पूरी तरीके से, तो फिर मैं कहता हूँ कि भाई आप ये मंत्र और एक कोई भी आप वैद्य को दिखा लीजिए, वहाँ से ये दवाई आपको देंगे, और ये जब तीनों चीज़ें काम करेंगी, या तो स्टोन है, पूजा है, मंत्र है, एंड देन दवाई, तो आपका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमाइज है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ऐड कर पाता हूँ कि देखो जो हमारी सारी बीमारियां हैं ना, आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आपकी सारी बीमारियों की जड़ 2 कारण सिर्फ, एक है आपकी हैबिट, एक है आपकी थॉट्स। हैबिट्स में हम अपना लाइफस्टाइल, डाइट, एनवायरमेंटल फैक्टर, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं। थॉट में आ जाता है आपका मेंटल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो उसमें करंट सिचुएशन एंड जिसको हम कहते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन, जिनको हम सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं, जब तक इनका आदमी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होएगी कि मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी। हमारे क्या होता है, मैं स्पेशली अगर इंडिया की बात करूं, हम जब भी कोई बीमारी आएगी हम उसके ऊपर सिर्फ 2 कहते हैं कि या तो पड़ोसी के घर से कोई ना कोई जादू टोना हम पे कर दिया, ठीक है, या होता है कि ये मेरे कर्म खराब है, ठीक है। कर्म खराब तो डेफिनेटली वही बात है ना कि वो हमने ही किए, चाहे वो करंट हैं, क्रियामान कर्म की हम बात कर लें, या हमारे जो प्रलब्ध आ रहे, ठीक है, उनके कारण से हमारा प्रेजेंट है। और उसमें ही हमारी एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा योगदान है कि आपको रास्ता दिखाती कि भाई आगे खाई आ रही है, उस दिन तुम्हें थोड़ा बच के निकलना है, ठीक है ना। अब जैसे शास्त्रों में, हमारी एस्ट्रोलॉजी में आता है कि आपका ना इस टाइम पे लोहवान यंत्र से आपको खतरा, मतलब गाड़ी से खतरा। अब अंदर बैठ तो सकता नहीं, जाना तो है, तो रादर देन मोटरवे पे 125 पे गाड़ी चलाना, मैं 70 पे चलाऊंगा, थोड़ा सा ख्याल रखूंगा, वही एक है प्रिकॉशन हमें देते। फिर आ जाती है बात आयुर्वेद में रत्नों की, ठीक है, हमारे रत्नों का बहुत रोल है, ठीक है। उसकी भस्मास बनती, हीरे की भस्म है, ठीक है ना, मानक भस्म है, अपना मोती भस्म है, ये सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए काम करती है। और इसी तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी में हमें दिखाया जाता है कि आप अगर ये टाइम चल रहा है तो आप ये थोड़ा सा अपना ये वाला मूंगा पहन लीजिए या वो रतन पहन लीजिए, उसकी जो वाइब्रेशन है, और आप उस रत्न को पिला देते हम उनको मिला के घी में, जो घी कोई खाना नहीं चाहता उसमें उस दिन वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब तो बच जाएं तो बच जाएं। तो ये मतलब बात कहने की मेरी है कि ये एक साइंस है, और साइंस को सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो हर प्रॉब्लम का हल हम निकाल पाते हैं मिलके। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा कि इसका एक और फैक्टर है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो है आपका लास्ट बर्थ कर्म, है ना। जैसे काफ़ी सारे इसके सिंबल्स बताए गए, जैसे कि पिछले जन्म में लोगों के कपड़े चुराने से इस जन्म में खुजली होती है। अच्छा, बिल्कुल सही बात, राइट। सो लास्ट बर्थ का किया हुआ, तो हम नॉर्मली ऐसा सोचते हैं कि हमने किसी को चाटा मारा तो वो हमें चाटा मारेगा तो बराबर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आपने कोई और एक्शन लिया, वो किसी रोग के रूप में भी आपको आ सकता है, किसी ह्यूमिलेशन के रूप में आ सकता है, कोई अभाव के रूप में भी आ सकता है। तो ये तीनों चीज़ें कि भाई आपका इस जन्म का कर्म, लास्ट बर्थ का कर्म, आपका लाइफस्टाइल, आप इस समय कैसा कर रहे हैं, और फिर आपका चार्ट, सही बात, फिर आयुर्वेदा। तो ये मतलब चारों चीज़ें सर्किल में मैं कह रहा हूँ, ये चारों चीज़ें एक तरीके से पूरी तरह से मिलकर फिर एक होलिस्टिक अप्रोच बनती है। ओके, एक तो हम जो मेडिसिन आप जो देते हैं, जो लोग लेते हैं, फिर एक काफ़ी जो मुझे पता ही है कि आयुर्वेदा की हमारी मसाजेस तो बहुत ही पॉपुलर हैं, तो वो मसाजेस फिर कब ऐड होती है? अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा विद फुल रिस्पेक्ट ये मतलब अमेंड कर लूँ कि
आयुर्वेद में मसाजेस नहीं होती, आयुर्वेद में बॉडी वर्क है, ठीक है। वो जो ट्रीटमेंट्स है ना, लोगों को ये लगता है कि क्योंकि मैं इसका पॉइंट इसलिए लिया कि आप जैसे जाते हैं कि आप सुपरमार्केट जा रहे हैं, जहाँ शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे घूमते घूमते थोड़ा टाइम लग गया, तो यार इसके पास जाके थोड़े से हाथ हिला लें, ठीक है ना, तो वो भी एक मसाज के तौर पर आयुर्वेद में जो हैं हमारे जो स्पेसिफिक ऑयल्स होते हैं, और वो ऑयल को एक ऑयल को बनाने में 2-2 3-3 महीने लगते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट मेडिसिन आती हैं, और फिर वो आपके अगर शरीर में कोई जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है उसका बॉडी वर्क ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको बताएंगे, और वो आप लेंगे तो दैट विल गिव यू द अल्टीमेट रिजल्ट फॉर दैट। क्योंकि होता क्या है कि जब आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए दिनचर्या ऋतुचर्या को अपनाना शुरू किया, खान पान थोड़ा किया, तो दैट विल टेक अ बिट टाइम। बट अगर जो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी डिजीज़ फिल रही है, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, तो वो जो हमारा बॉडी वर्क ट्रीटमेंट है वो इमीडिएटली डीप लेवल पे हमारी बॉडी में 7 धातुज होते हैं, ठीक है, और 13 चैनल्स हैं, तो उन लेवल पे पहुंच के उन टॉक्सिन्स को डी रूट करके फ्लश आउट करते हैं। तो वो प्रोसेस है उन ट्रीटमेंट्स का, और डिफरेंट ट्रीटमेंट विल गिव यू डिफरेंट बेनिफिट। तो ये पार्ट है 7 धातुस रिलेटेड टू 7 प्लैनेट्स। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वही तो 7 चक्रा also चक्र, related to the 7 planets. कहीं ना कहीं घूम So के it's like a circle. बिल्कुल सारा है It's all circle. तो आप इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, लेकिन कहीं से तो पकड़ो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उस चीज को फॉलो करना, किसी भी स्वरूप में करो आप। और मैंने देखा आप एक चीज से चालू करते धीरे धीरे दूसरी चीज भगवान आपको अपने आप ही उस तरफ ले जाते हैं। जैसे आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड होगे तो आपको अपने आप ही आहार विहार समझ में आने लगेगा, देन यू गो टू आयुर्वेद, ऑटोमेटिकली हो जाता है ये बेसिकली। मैंने अपने आप में वो परिवर्तन देखा। वो बात सही है ना, बहुत आप देख लो योगा की बात, योगा में जैसे मैंने कहा कि शुरू में लोग सिर्फ आसना तक आते, ठीक है ना, तो आसना जब वो करते और थोड़ा सा करते और धीरे धीरे उनके दिमाग में आ जाती है बात कि मुझे ये वाला चीज़ छोड़ना है, स्पेशली मीट की अगर हम बात करें, क्योंकि नॉन वेज इज़ प्रोडोमिनेंटली इन वेस्टर्न वर्ल्ड नाउ इट इज़ अ लॉट, तो वो वैसे ही उनका जो जैसे लोग जी ने बताया कि उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि योग का कनेक्शन ही है ना, योग अल्टीमेटली इज़ कनेक्शन, ठीक है। एंड अब जब हायर की तरफ आप चलोगे तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से वैसे ही निकलने शुरू हो जाती हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस जैसे है। कोई बहुत क्रॉनिक डिजीज में है, जैसे आपने कहा अष्टम की दशा लग गई या छठे हाउस में कुछ है, तो बहुत क्रॉनिक, उस पर आप देख पा रहे हैं उसके चार्ट में कि ये है, तो वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के अंदर है या बहुत चीज़ों से गुजर रहा है, तो क्या उस स्टेज पे हम आयुर्वेदा उनको इंड्यूस कर सकते हैं? वुड दैट हेल्प? इतने केमिकल्स हैं बॉडी में ऑलरेडी, या वो हील कर रहा है? तो डेफिनेटली कर सकते हैं एक्चुअली, बट इट इज़ अबाउट द ट्रस्ट ऑफ द पर्सन। हाँ, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको वो उस मेडिसिन की आदत है कि वो अकेला आयुर्वेदा कोई करना नहीं चाहता जब वो क्रिटिकल हो जाता है तो। जी बिल्कुल। वेरेज अगर वो तो आयुर्वेदाचार्य या ज्योतिषाचार्य पर तब नहीं जाना चाहिए जबकि आपको तकलीफ आ चुकी है। अब अगर 7.5 लग गई है तो अब ज्योतिषी क्या कर लेगा? अब तो शनिदेव आके खड़े हो गए, राइट। इसीलिए आयुर्वेदाचार्य, ज्योतिषाचार्य और ये 2 चीज़ें, ये आपका हर महीने का प्रैक्टिस है बेसिकली, कि आपको पता है कि लगने वाली है, या आयुर्वेदाचार्य आपकी नब्ज देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि भाई बात बिगड़ रहा है, तो वो जब वो किसी दिन बिगड़ के राक्षस हो जाएगा उससे पहले वो उसको वहीं की वहीं क्योर कर, क्योंकि हर बीमारी का सिग्नल आपका बॉडी कई वर्षों पहले दे देती है, क्योंकि चार्ट्स में तो आपके पहले दिन ही आ जाता है ना, तो चार्ट में तो आपके पहले दिन ही आ जाता है, तो वो बता देता है भाई लीवर का दिक्कत आएगी, और वो दशा से आ भी जाता है कि इस समय आएगी, उससे पहले इनको इंडिकेशन आ जाता है कि आने वाली है। तो ऐसा नहीं, आपका कर्म है, आपको थोड़ा तो भुगतना पड़ेगा, बट जो तलवार है वो सुई हो जाएगी कुल मिला के बात। दैट्स बिल्कुल आलोक जी, जो आपकी ये बात है इसको तो मैं 100%, यही हम हर वक्त प्रैक्टिस में बात करते हैं कि जब आप, अब लॉट ऑफ पेशेंट कम फ्रॉम, आजकल क्योंकि ये सबसे बड़ी है कैंसर की प्रॉब्लम कह लीजिए, डिफरेंट कैंसर्स हैं उनके, पर अब जो कैंसर वाले लोग हमारे पास आते हैं, पहली बात तो ये है कि आई हैव टू आइडेंटिफाई कि आप किस स्टेज पे हैं, सेकंड स्टेज पे, थर्ड पे, तो जिस भी स्टेज पे हैं, मेरा ये उनसे होता है कि आपका वो प्रोसेस तो चलेगा, चाहे रेडियो एक्टिविटी चलने या कीमो, बट उसके साथ अगर आप अपना खान पान, लाइफस्टाइल, ठीक है, मेडिटेशन और 2 चीज़ों को नहीं ऐड करते तो आपकी प्रॉब्लम ने बढ़ना। ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कभी नहीं बताएगा कि आप ये खाना पीना छोड़ दो, उसका काम है आइडेंटिफाई किया, उसके साथ जो सर्जन है
ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, उसने कहना अच्छा, ऑन्कोलॉजिस्ट ने कह दिया कि हमारी रेडियोथेरेपी अभी नहीं काम करनी, पहले इसका ये पार्ट काट दे। वो कहता चलो अंदर, उसने वो काट के आपको वापस करके भेज देना है। फिर उसने अपनी थेरेपी शुरू कर देनी है, टारगेट थेरेपी करनी है, कीमो करना। बट उसका साथ साथ ये वो ना तो आपको बोलते हैं कि अपनी शराब छोड़, ना अपनी कहते हैं कि कॉफ़ी छोड़, ना छोड़, उनका खान पीन बिगड़ना, वो बात आती है आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद वाले जो हैं वो उनको समझा देते हैं कि भाई अगर आप ये लाइफस्टाइल करो। फिर उसमें एस्ट्रोलॉजी का क्या है, क्योंकि अगर उसको ये याद है कि मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के पास गया था, एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने कहा था कि ये तेरा टाइम यार बुरा चल रहा है पर ये ठीक हो जाना है। उसका जो ठीक होना कहा गया है वो उसके लिए एक सबसे बड़ा जड़ी बूटी है, क्योंकि वही तो उसको वही विश्वास सारा दिलाता है। उसका जो विश्वास है कि अच्छा मैं अब इसके पास आ गया, ठीक है ना, इसने मुझे ये चीज़ें दी हैं, मैं अगर इनको इम्प्लीमेंट करूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। आपने जो वो तो आपका story पर्सनल बताई, एक्सपीरियंस भी है। मैं उसी पे आ रही थी, जो आपने अभी जो स्टोरी बताई कैसे सॉरी। उसी दौरान ही मैं इनसे मिली थी, जब मैंने आपको शेयर भी करा था कि मुझे डॉक्टर्स ने कुल 2 दिन का मौका दिया था कि सर्जन बुक है एंड यू हैव टू गेट अ यूट्रस रिमूव्ड, इट्स वर्ड सी। आई सेड नो, आई वांट टू अंडरगो विद द बायोप्सी एंड बिल्कुल, हाँ। आई सेड नो टाइम, बट वो कहते हैं ना कि मेरा बिल्कुल। टाइम से पहले हाँ। ये मिल गए थे। आप जो कह रहे हैं, जो ये ऑर्गन्स काटने की बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अब तो इंडियन में भी मैं देखती हूँ बहुत जल्दी हम लोग कर रहे हैं ये चीज़। द यूट्रस रिमूवल हो गया या प्रोस्ट्रेट का हो गया, मतलब Yes. टाइम ही नहीं दे रहे हैं आपको डॉक्टर। आई थिंक इंडिया भी सेम ही है। सेम, ये वर्स्ट, ओहो। ये वर्स्ट है। तो एक बार बॉडी पार्ट जाता है तो इट बिकम्स रियली हार्ड। Correct. अगर कोई छोटा बच्चा है तो कितनी उम्र से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब कोई भी उम्र से दे सकते हैं बिल्कुल। या? अच्छा। हाँ जी, अब सबसे बात आ जाती है कि जो छोटे बच्चे की प्रॉब्लम है, अपना जैसे आलोक जी ने बताया कि उसमें उसके कर्मों का तो रहेगा ही रहेगा सा, पर सबसे बड़ा जो आयुर्वेद बात करता है कि वो जो गर्भिणी है, जिसको हम मदर कहते हैं, सारी प्रॉब्लम की जड़ मदर पे आ जाती है। सॉरी टू से दैट पार्ट, बट होता क्या है कि हमारा जो आजकल प्रेगनेंसी का काम है ना, प्रेगनेंसी बाय चांस हम लेते हैं, ठीक है ना। प्रेगनेंसी को हम ये नहीं सोचते कि ये प्लान्ड है। और आयुर्वेद में इसका पूरा है कि आपको गर्भ संस्कार। हाँ जी, गर्भ संस्कार, फिर गर्भिणी का परिचय, फिर सूतिका। तो ये सारे कंपोनेंट इसलिए बता, आजकल के टाइम में आप देखो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, बच्चों को सिंपल अगर हम नेम करना तो बड़ा आसान है ना, कि अगर इसको ADHD हो गया, अपना इसको डिसलेक्सिया हो गया, इसको OCD है, ऑटिज्म इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नेम करना हमारे लिए बहुत ईजी है, बट हम ये नहीं सोचते कि उसको प्रॉब्लम आई क्यों। वो आई तो मदर के गर्भ से ना, जब उसका लाइफस्टाइल, उसकी डाइट, उसकी थॉट्स नहीं ठीक है। अब ये तो हमारे सारे शास्त्रों में इन चीज़ों का है, अब धीरे धीरे इनकी बातें आती। अब जब महाभारत की बात कर लीजिए, जब वो अर्जुन जी ने सुना रहे थे कि वो जो अभिमन्यु का जो है वो सारा बात, तो जब वो सो गई तो नहीं सुन पाएंगी बाहर, तो वो सारी चीज़ें चलती। अगर हम उस बच्चे को सही सुना रहे हैं तो उसके विचार, उसकी थॉट शुरू से ही वैसी होंगी। अगर मैं उसको शस्त्र की बात सुना रहा हूँ तो वो बाहर निकलते ही शस्त्र पकड़ेगा, या फिर अगर मैं उसको मंत्र सुना रहा हूँ तो मंत्र की बात करेगा वो। ये। And then in the entire 9 months of pregnancy, since we have 9 planets, so एक ग्रह डेवलप होता है। बिल्कुल। And yes, and आयुर्वेदा उसको कनेक्ट करता है। सो एक महीने में एक तरीके का उपचार किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। जिससे कि उस ग्रह की पूरी शक्ति। सो अगर आपको एक डिवाइन बच्चा पैदा करना है तो वो जब आप पहले तिथि के हिसाब से डेट्स फाइनल करें, देन दोनों अपना चेकअप कराएं कि दोनों इस मानसिक और शारीरिक परिस्थिति में है कि नहीं है, एंड देन वंस द प्रेगनेंसी इज लाइक द कंसेप्शन इज डन, देन ईच 9 months द मेडिसिन्स एंड द प्रोसेसेस, चाहे वो स्वर्ण प्राशन हो या गर्भ संस्कार का जो पूरा प्रोसेस है, उसका है, वो 9 ग्रहों को शक्ति देने के लिए होता है। तो आधा समस्या तो आप वहीं से निपटा के ला सकते हैं बच्चे को। कितना कुछ हमारे हाथ में है। बिल्कुल है, बट फिर भी जो बात आती है, जो उसके ग्रह हैं, जब उसका कंसेप्शन हो गया उसके हिसाब से उसको भुगतना तो है। पर जैसे लोग जी ने बताया कि गन का सिंपल बुलेट बन जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी लगेगी तो जरूर, पर वो भुगत के निकल जाएगा। I think I would like to say that if we can combine the Ayurveda with, I think, astrology, both have AA and Alok Ji's and Ajit Ji's. Oh my God, there are 4 A's, Ajit Ji, Alok Ji, Ayurveda and astrology.
I think we can definitely help the community more, especially the Western world, I must say. बिल्कुल यही सबसे बड़ी चीज़ है कि जब लोग अगर मैं तो यही हमेशा प्रार्थना भी करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस में भी सब लोगों को बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम बीमारियों से दूर रह पाएँ, तो अगर आप आयुर्वेद को, योग को और एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, ये नहीं कि लोग जी यहाँ बैठे तब मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इट्स एन ए साइंस, और ये ऐसी साइंस है कि आपको बता सकती है कि आने वाले टाइम आपके कैसे आ रहे, और आप शुरू कर लो अपना बचाव, ठीक है ना। वो सबसे बड़ी बात होती है कि टाइम का पता लगना। लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास मैं जा रहा हूँ, यार वो मेरा ये बुरा टाइम ख़त्म कर देगा, मेरे को धन का बता देगा कि कहाँ किस दिन तेरे को धन मिलना। हम धन के चक्कर में ही फंस जाते हैं ना। पर वो जो अंडरस्टैंडिंग है एस्ट्रोलॉजी की, आपकी टाइम, आने वाला टाइम कैसा, पिछला तो जो गया सो गया, ठीक है, उसके ऊपर रोने से तो हमें कुछ नहीं बनेगा, पर आने वाले को अगर हम बचा पाएँ और सही अपनी सोच कर पाएँ, सही हमारा लाइफस्टाइल बन जाए, तो सारी दुनिया ही बदल जाएगी। ये है। So nice. So as we have just discussing Ajit ji and Alok ji, that we can combine both the knowledges together, that is the astrology and the Ayurveda, Ajit ji and Alok ji, as we just discussed. So if we have to, like someone is watching us now who just knows a bit of here and there, what kind of advice would you both would like to give so that he or she be in the right direction to look after himself or herself? What do you suggest? I think it's a good idea that you read your chart maybe with an authentic astrologer. Authentic, thank you. Authentic astrologer. Not the real ones. No, the real ones. No. Real no, ones, no, I'm no, also very no, worried no. now. So you should go to an astrologer, not to a content creator. Thank you. Yeah. And then you have an understanding of the entire life, that which element is like which if you, what is your pravatti, either it is a vata, kapha, pitta, and yeah. then what are the The doshas, posture, imbalances in you, and then you should have a permanent Ayurveda chart always with you, so that most of the time you are basically protected. Yes. Because you have that awareness of the time. See, most of the activities in our life, if we have that awareness, Yes. that okay, I am getting into a good time. Good. So you know that you are getting into good time, so your motivation increases, Yes. and then what happens in that case, the success chances increases, right? And if you know that you are getting into a bad time, you just protect yourself, and you are not taking big risk. Same applies to the body also. That if you are getting into a good time, doesn't matter if you are eating dal bafla for 2-3 days continuously, right? But if you are into a bad time, then you have to be very careful about your body, your surroundings. Now, your food is 80% of your life. So, your food is going to decide what kind of behavior you will have. So, basically the food, the dincharya which Dr. Saab is talking about is is deciding that what kind of relationship you will have around. People don't understand this. We in India we have a saying like "Jaisa khaoge ann vaisa banega man." बिल्कुल। So, the food is going to decide your mind, and then mind is going to decide your actions. So, that's how it is correlated basically. Ajit ji, you have been a very pioneer figure in Australasia, New Zealand and Australia, that you teach students the Ayurveda as well. So now, what kind of students are we getting? Are they getting more into this kind of a science? Totally. First of all, I would like to say कि look, Western medicine has its own place. Yes, No one can question about that, right? But time is coming, or always has been that, कि without the intervention or without the involvement of Ayurveda and astrology and yoga, one cannot achieve what we call perfect health. That is where the role comes up. So when you are going to a Western doctor, he or she is going to give you immediate solution for your problem. But he or she is not going to advise you that how you can prevent that problem coming back to you. That is where the role of Ayurveda comes up: lifestyle, diet, mental, emotional factors, how to handle that. Right? And then comes up, if you already know that my chart is giving me that this is in a bad phase, these are my graph which are a little bit up and down in that house or so, he or she will get that mental strength, which is the key factor for our well-being to make the right step. Otherwise, what happens if I feel that everything is gone, they will go into that cloudy, dark situation and the things can get worse. Hence, I will say that time
is coming, and time should be brought together by the higher officials who are decision maker, that in every country there should be a system which can help the community, not help us. Means, yes, everyone has to make a living, but living, if someone is into Ayurveda, Western medicine, yoga or astrology, these are different businesses. These are the businesses for public seva, service, whatever you. If that can be our prime objective, yes, we can make a very healthy society. Exactly. So I think going forward, those who are listening to us and watching Astrologue podcast, they know that for the Ayurvedic knowledge, we have the expert here. For the astrology knowledge, we have the expert here. And if you want to know more about it, you can contact them as well, because they both go hand in hand. When you go hand in hand, what happens? You go solid and you get the right solutions. Thank you for your time, Ajit ji. It's such a pleasure to have you. Alok ji, and thank you from Astrologue. Thank you.